Let's begin with part 3 of prepositions. First is under, or we can say that it is the 8th one. The 7th ones are already discussed in previous sessions. So under we use when we want to say that on the ground or lower than, means when the thing is below, then we use under. So the example of it is the purse is under the table. So purse is where? Under the table. So inside को बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज विद को हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए दो चीज़ को या उसमें इन्वॉल्व होने में. मतलब कि जब हम दो चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं उस केस में, जैसे कि एग्जाम्पल आई ऑर्डर्ड पास्ता विथ चॉकलेट मिल्क शेक. सो what I did, I ordered a pasta along with chocolate shake. So this is what that two things are together. One is eatable, that is pasta, and another is drink, and that is milkshake. But I have ordered that together. So that is why it is showing togetherness. Whenever the sentence or the things shown togetherness, we used to use with. Then second is यूज टू इंडिकेट हैविंग, कुछ होने को शो करना. जैसे आई मेट अ वुमन विथ 4 चिल्ड्रन, मैं एक ऐसी औरत से मिली थी जिसके 4 बच्चे हैं. या किसी चीज़ का होना, हमारे पास किसी चीज़ का होना, उसको हम बोलेंगे विद. आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, लाइक मैं सब, मुझे जो है भगवान की तरफ से सब मिला है. सो विद. यूज टू इंडिकेट यूजिंग, किसी चीज़ का यूसेज बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. जैसे आई बेक केक विद कुकीज़ एंड मिल्क, मैंने केक को बेक किया किसकी हेल्प से? कुकीज़ या बिस्किट्स लिए या मिल्क लिया. सो केक बना कैसे? बेसिकली कुकीज़ और मिल्क की हेल्प से. नेक्स्ट इज़ व्हेन वी want to showcase our feeling, or it can also be used to indicate feeling. He faced the audience with confidence. So confidence here is what? It is the feeling what he had shown, that he faced it very confidently. Then used to indicate agreement or understanding. When we want to show that yes we stand with it, yes हम इसे agree करते हैं, then also we use with. I agree with her, मैं उससे सहमत हूँ, like this. Okay, on the basis of the prepositions we have done, there is an essay, that is the task 2 of IELTS. In this video the focus is not on the task 2, like what is it or how we attempted. The focus is only on the preposition. So the essay has been framed out like in a that way, like introduction is there, B1 B2 is there, but thing is this, that there is a main focus is on prepositions. Like whatever we have done, on the basis of that, where these are prepositions are applicable, we are going to use it in that way. So to begin with our B1 introduction, it is believed that there is an abrupt चेंज. अब्रप्ट मीन्स सडन और अनएक्सपेक्टेड. सो ये माना जाता है कि अब्रप्ट चेंज मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज नोटिस किया है लाइफस्टाइल. ठीक है, लाइफस्टाइल में या क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम चेंज जिसमें कि फील किया गया है. सो वी डिड इन आर लेसन्स दैट वी यूज़ इन व्हेन देयर इज़ ओपिनियन. मतलब जितने हमने उसमें किए थे, जितने भी डिस्कस किए थे, उसमें एक था ओपिनियन. सो दिस इज़ ओपिनियन सॉर्ट ऑफ की चेंज को जो है वो नोटिस किया गया है किसमें? लाइफस्टाइल में. सो ये एक तरह का ओपिनियन चल रहा है. तो जब ओपिनियन की बात हो रही है, वी कैन यूज़ इन. दैट इज़ वाई आवर आंसर हेयर इज इन. देन लाइफस्टाइल पीपल, लाइफस्टाइल ब्लैंक पीपल. The change has been noticed, but where the change has been observed. So people, in what case? So change has been felt in the lifestyle of people. Of हम यूज़ करते हैं का के लिए. So यहाँ पर कैसे आया?
हमने इसकी डिस्कशन में किया था, हम ऑफ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ किससे या क्या बिलोंग करती है, हु व्हाट डज इट बिलोंग टू। सो यहाँ पर बिलोंगिंग की बात जो है वो लोगों के साथ है, तो यहाँ पर पीपल के पहले आ गया ऑफ। सो लाइफस्टाइल एक तरह का ओपिनियन बता रहा था कि ओपिनियन जनरेट कर रहा था, और पीपल आगे जिनसे बिलोंग करता है। Again afterwards the left blanks has to be among those options which we have already used, so you have to fill it by your own. Then let's move to the second part. The blank one hand is what it is, part of body. So in our lesson we have done, when we are going to indicate the part of body, we use preposition on. So on the one hand, although here we are not using it as a body part, we are using it to indicate that this is one part and this is second part, but all in all hand is a body part. That is why on has been used on the one hand, because it's a rule that when we talk about a body part then we will use on. एक तरफ पर सो पर की इंग्लिश भी हो गई on. आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड लाइन, लाइक सीन के बाद जो ब्लैंक है उसमें जो हम यूज कर चुके हैं उन्हीं के बीच में कोई एक आएगी ऑप्शन. सो यू हैव टू फिल योरसेल्फ. आई एम जस्ट डिस्कसिंग दोज आर लाइक विच हैज़ टू बी फिल्ड फर्स्ट. तो आपको वो करनी है जो रेपिटेशन में आ रही हैं, ठीक है. अब इसके बाद है फर्स्टली. सो फर्स्टली द टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द कम्युनिकेशन. इसने टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव करी है फैमिली मेम्बर्स. कम्युनिकेशन ब्लैंक फैमिली मेम्बर्स एंड वन कैन रीच आउट देयर फैमिली. कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है फैमिली मेम्बर्स. क्या कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है फैमिली मेम्बर्स के बीच में. सो इन आवर लेसन वी हैव डन व्हेन वी हैव समथिंग बिटवीन, लाइक दो लोगों के बीच में, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन. सो बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स. तो टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया है कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स को. सो यहाँ पे आ गया बिटवीन, जहाँ पे बात दोनों के बीच की हो रही है. एंड वन कैन रीच आउट देयर फैमिली एंड अदर रिलेटिव्स इमीडिएटली. इंटरनेट. सो इंटरनेट मतलब जो है वो प्रॉब्लम बन चुका हुआ है, और इसके इंटरनेट जो है वो सोल्यूशन बन चुका हुआ है फैमिलीज़ के आपस में जो है वो कॉन्वर्जेशन के लिए. सो ओवर द इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन, समथिंग ओवर वी हैव यूज्ड, कि ओवरकमिंग किसी इशू को सॉल्व करने के लिए हम ओवर को यूज़ करते हैं. तो ओवरकमिंग ये क्या हो गया कि मोबाइल फ़ोन ने या इंटरनेट ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है जो कि हेल्प करता है लोगों की कि वो जो है आपस में कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सके, कम्युनिकेशन बिल्ड कर सके. तो यहाँ पर ओवर इन लेसन वी हैव डिस्कस कि ओवर हम एक यूसेज उसका ये भी है जब किसी इशू को ओवरकम किया जाता है. ओवरकम करना मतलब उसको सॉल्व करना या सॉर्ट करना. सो इंटरनेट ने काम कैसे किया है इनके सोल्यूशन की तरह. So this was the usage of over. Then secondly the people can travel dash remote part. लोग ट्रैवल कर सकते हैं रिमोट एरिया को. सो को के लिए we use to, और हमने किया भी था अपने लेसन में that to we use to indicate thing और place. किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए सो लोग ट्रैवल कर सकते हैं रिमोट पार्ट पे. तो वो किसके रिमोट पार्ट क्या हो गया, जैसे कि आप उस तरफ जा रहे हो, उस लोकेशन को बेसिकली इंडिकेट कर रहा है. तो in our lesson we have done that to is used to indicate place or a thing. तो यहाँ पे आ गया to. Then we have rest you will do yourself. Now we have BP2. Earlier we have discussed introduction and body paragraph 1. Now we have B2. And we will start from the second line. This is mostly due
yeah, you have to fill the altered lifestyle choice accessible dash people as increasingly dependence dash. We have now the lifestyle. Altered means changed, lifestyle choice, accessible means approachable है, पहुंच है लोगों के लिए. So जब फॉर आता है वो लिए को इंडिकेट करता है ना. रूल्स हमने पढ़ा है कि किसी का इस्तेमाल बताने के लिए, तो इसका इस्तेमाल क्या हो गया कि लोगों को बता रहा है. लोगों के लिए जो है वो एक्सेसिबल है, लोगों की पहुंच पे है, क्योंकि लोगों की एक जो पहुंच है किस पे ज़्यादा बनती जा रही है. डिपेंडेंस डैश फास्ट फूड. अभी हमने ऊपर भी किया था कि डिपेंडेंस किसी चीज़ पर होना, या कहीं पे भी आपको पर की साउंड आ रही है, ऊपर की साउंड आ रही है, वहाँ आ जाएगा ऑन. हमने इनकी ट्रांसलेशन भी वैसे की एंड देन हम अपने रूल्स के भी अकॉर्डिंग चल रहे हैं. एक्सेसिबल फॉर पीपल हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है इसकी लास्ट लाइन में, whereas elders of family are against this tendency as this would put the young generation tremendous stress and pressure. जो बड़े हैं घर के वो इसके अगेंस्ट है, इस टेंडेंसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये यंग जनरेशन के पर, यंग जनरेशन के ऊपर या उन पर या उनको दबा देगा, किसके अंडर, स्ट्रेस और प्रेशर के ऊपर के अंदर उनको दबा देगा. सो अंदर के लिए या इनसाइड के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अंडर. हम लोगों ने इन भी किया था हम जब वहाँ पे बात कर रहे थे अंदर की, पर यहाँ पर अंदर किसके, तो यहाँ पर क्या इन क्या है जब आप बीच की बात कर रहे हो, बट यहाँ पर क्या है पुट उनके अंदर भर देगा. ठीक है, इन जो है उनके अंदर भरने के लिए नहीं है. उसके लिए जब अंदर बनने की बात होती है, अंदरूनी बात होती है, देन वी यूज़ अंडर. यंगर जनरेशन अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस एंड प्रेशर. यहाँ पे इन नहीं आ सकता क्योंकि वो प्रेशर और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, वो उसके अंदर जाएंगे. तो अंदर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अंडर. एंड हमने इसके यूसेज में भी करा है जब वो लोअर देन की स्टेट को बताता है. तो लोअर स्ट्रेस और जो प्रेशर होता है वो पर्सन को लोअर ही फील कराता है. तो उस केस में क्या हो गया कि वो उसके अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे. देन ऑन आवर लास्ट पार्ट, दिस इज कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में हमारे पास दो आपके ऑप्शन आप फिल करोगे. उसके बाद जो रह जाता है डेट इज increase family relationships is seen dash the positive changes. कि जो increase family relations हैं उनको positive changes के साथ देखा जाता है कम्युनिकेशन और ट्रैवल. आपके पास जैसे कोई भी आती है कि जैसे हमने फॉर के लिए किया या हम टू के लिए को कर रहे हैं, अब उनको भी गो थ्रू करके देख सकते हो कि यहाँ पे सूट क्या हो रहा है. अब हमने विद में रूल में कब पढ़ा था कि किसी तरह के एग्रीमेंट को ये जो है वो दिखाता है विद. तो यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट किस तरह से हो गया, पॉजिटिव में. पॉजिटिव इन सेंस में कि अगर फैमिली रिलेशनशिप जो है वो इससे बेटर हो सकते हैं, कि ये एक पॉजिटिव चेंज है कम्युनिकेशन और ट्रैवल के बीच में, जिससे क्या है फैमिली रिलेशन इम्प्रूव होंगे. तो ये एग्रीमेंट को शो कर रहा है दो लोगों की. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आ गया विद. तो अगर आपको रूल्स, जैसे मैंने इसको रूल वाइज भी बताया है और मैंने इसको नॉर्मली, जैसे अगर हम इसको ट्रांसलेट करके देखें तो क्या सेंस बनेगी, मतलब हम सेंस वाइज इसको कैसे करेंगे वैसे भी बताया है आपको. जिस वे से समझ आता है उस वे से करो, लेकिन अगर रूल वाइज भी करोगे आपका गलत नहीं होगा. कई बार ये होता है कि ट्रांसलेशन हमें बहुत सारे लगते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन भी आती है, लेकिन अगर आप रूल वाइज करोगे तो रूल वाइज में क्या है आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी. सो दैट्स इट. थैंक यू.